صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جھوم پر بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت گرامی، ہمارے قاری صاحب قبلہ آج قائدے سے خطاب اس تبوک کی دھرتی پر کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے سے سماعت کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو علم حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. نہ جانے کتنے ڈنڈے شریر پہ جسم پہ ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی چٹائیاں گھس جاتی ہیں، نہ جانے کتنا دکھ اور مصیبت جھیل کر تب بندہ عالم دین اور حافظ قرآن بنتا ہے. اور اپنی اچھی بات آپ تک جب پہنچاتا ہے آپ اسے غور نہیں کرتے ہیں تو بہت تکلیف اور ملال ہوتا ہے. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ سمجھ میں جو بات آ جائے وضاحت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں جو بات آ جائے وضاحت اس کو کہتے ہیں. گر دل میں اتر جائے خطابت اس کو کہتے ہیں. گر دل میں اتر جائے خطابت اس کو کہتے ہیں. اور ایک نقطہ نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. ایک نقطہ نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. میں دعا لکھتا رہا لوگ دگا پڑھتے رہے. میں دعا لکھتا رہا لوگ دگا پڑھتے رہے. خاموش ہو گئی آج صبح کچھ کہتے کہتے. بہت ہی اچھی نقاشی شاعر نے کیا ہے کہ خاموش ہو گئی صبح آج کچھ کہتے کہتے. ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. خاموش ہو گئی صبح آج کچھ کہتے کہتے. ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر یقین نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر یقین نہیں ہے. بس یوں ہی پریشان ہو گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. اور ایک وقت کی نماز میسر نہ ہوئی. ایک وقت کی نماز میسر نہ ہوئی. دکھ ہوا موسم ازا کہتے کہتے. اور بہت ہی ہولی فیٹ شعر ہے، بہت ہی ہائی فائی اور اونچی فل شعر میں آپ سب لوگوں کے حال کے حوالے کر رہا ہوں کہ کسی کافر نے پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے. کسی کافر نے پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے. ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کرتے کہتے. ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے. راجان ملت اسلامیہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان شریف میں عطا کی ہے. اور میں بتا دوں امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے. تقریر میں امام صاحب کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے جو کھاتا ہے. سمجھے چاہوں گا اللہ تعالیٰ اسے بھی کھلاتا ہے جو کھاتا ہے اور جو نہیں کھاتا اللہ اسے بھی کھلاتا ہے. جو نہیں کھاتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے. ایک بندہ بیٹھا تھا سوچا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کھاتا ہے اللہ اسے کھلاتا ہے. میں جب کھاؤں گا ہی نہیں تو اللہ کھلائے گا کیسے؟ کیسے کھلائے گا جب میں کھاؤں گا نہیں؟ تو سوچا میں کھاؤں گا نہیں. صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوا، ایک دن ہوا، 1.5 دن ہوا لیکن کھایا نہیں. گھر والے پریشان، ماں پریشان، باپ پریشان، بھائی پریشان، بہن پریشان. ہوا کیا ہے تو کھانا نہیں کھا رہا ہے. کہا نہیں کھاؤں گا. سوچا گھر سے کام نہیں چلے گا جنگل پکڑوں گا پیچھا چھوٹ جائے گا. جنگل میں چلا گیا. کہا کھاؤں گا نہیں. جیسے دیکھتا ہوں کیسے کھاتا اللہ کھلاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جنگل میں گیا. ماں کی ممتا یاروں بہت تیز ہوتی ہے. ماں کی ممتا بہت پیاری ہوتی ہے. اے میرے نوجوانوں، او میرے پیارے بھائیوں، یہ سعودی عربیہ میں آپ کمانے کے لیے آئے ہو، آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہو، آپ پیسے کمانے کے لیے آئے ہو. یہ رمضان
मक्का मुबारक महीना चल रहा है, कोई माँ को छोड़ के आया है, कोई बाप को छोड़ के आया है, कोई भाई को छोड़ के आया है, पूरे परिवार को छोड़ के आता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन तुम्हें मालूम है कि जब एक बेटा हिंदुस्तान की सरजमी पे अरब सऊदिया अरब के लिए चलता है, निकलता है, फ्लाइट को पकड़ता है और रास्ते में होता है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है जो अपने नौजवान बेटे को अपने सामने खाना खिलाया है। उस माँ के सीने पे कैसा गुजरता होगा जो उस नौजवान को अपनी कोख में 9 महीना रखी हुई है। तवज्जो चाहूंगा, वो माँ की ममता मानती नहीं है। माँ अच्छा से खाना बनाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और उसके बाद जंगल लेके खाना चली जाती है। जब जंगल लेके खाना पहुंची है तो बेटा वहां से खाना कहाँ नहीं खाना है, देखो अल्लाह कैसे खिलाता है, नहीं खाना है, वहां से हट लिया। लेकिन मालूम क्या हुआ, कहते हैं जैसे खुदा रखे उसे कौन चखे, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तवज्जो चाहूंगा, वो खाना रख के वहां से हट लिया, जंगल है। अब जब वहां पर कुछ डाकू आए और देखे अच्छा खासा खाना रखा हुआ है, दस्तरखान सजा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मेवाजात रखे हुए हैं, मालूम क्या होता है, सोचते हैं कि इस खाने में कुछ गड़बड़ है, लगता है इसमें शहर वहर मिला है, क्योंकि यहाँ ना मकान है, ना यहाँ पे घर है, ना यहाँ पे आबादी है, ना यहाँ पे इंसान नजर आ रहे हैं। किसी ने चाल चली है, इस खाने में शहर मिला के रख दिया है ताकि हम आए और उसे खा ले और खा के मर जाए। चलो ढूंढते हैं आखिर कौन है ऐसा जासूस, कौन है ऐसा करने वाला। नहीं गया वही नहीं तो खिलाएगा कैसे, ढूंढने लगा, जब मिला पकड़ के लाए, कहा इसको खा, नहीं खाऊंगा, इसमें जहर इसलिए नहीं खाएगा, मेरे लिए रखा था कि इसे खा लूं मैं मर जाऊं, नहीं खाऊंगा। इमाम साहब ने तकरीर किया है कि जो खाता अल्लाह उसे भी खिलाता है और जो नहीं खाता अल्लाह उसे भी खिलाता है, मैं खाऊंगा नहीं, अल्लाह खिलाएगा कैसे। आंखों के बादशाह ने निकाला जूता और लगाया खोपड़ी पे 2 चार, कहा आप खाता कि नहीं खाता, कहा नहीं खाऊंगा। फिर निकाला जूता और 2 चार लगाया, कहा खाता कि नहीं खाएगा। जब 2 चार और बढ़ा तो खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। पता चला कि रब की हिकमत को कोई टाल नहीं सकता, जो पत्थर के अंदर है उसे भी रोटी देता है और खिलाने पे जब आता है, बंदा खाएगा तो खिलाएगा, नहीं खाएगा तो भी खिलाएगा। बस ये है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारा लगाओ तो फुल लगाओ, आधा मत लगाया करो, मिसकाल वाला काम नहीं। तो पता चला जो खुशी से खाता है अल्लाह उसे ही खिलाता है, और जो नहीं खाना चाहता अकड़ जाता है अल्लाह उसे जूते मार मार के खिलाता है। बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है। मैं तकरीर तो ऐसे करने के आदी नहीं हूँ, क्योंकि तकरीर के लिए तवज्जो जरूरी है। और यहाँ तो गरूर पे, पुर्तगाल पे, भाव पे, छोटी पे, लग्न पे, दोस्त पे, हफ्सा पे तवज्जो है तो भाई खिताब कैसे सुनेंगे, इसलिए खिताब लाएगा ना जाए। आपको मैं 5 मिनट टाइम और दूंगा ताकि रोजा आप रह रहे हैं इसकी अहमियत का पता लग जाए कि रोजा क्या है। आप रोजा रह रहे हैं, कितना मुबारक महीना यह है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मलिक के अंदर इरशाद फरमाता है, शहरुर रमजान लगी उजला कुरान, कि वो रमजान का महीना है ये कुरान। अब तवज्जो चाहूंगा, इस कुरान में अव्वल का आखिर जितनी भी चीजें दोनों आलम में, जन्नत में, जहन्नम में, कहाँ वहाँ, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अफ्रीका को कोई भी जगह ले लो, हर चीज कुरान में मौजूद है, हर चीज कुरान में मौजूद है। अब तवज्जो चाहूंगा, इतना मुबारक महीना आप लोगों को मिला और रोजा रह रहे। अच्छा रोजा नहीं रहे तो मिलेगा क्या? आओ मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताता हूँ कि जिससे रोजे की अहमियत का पता चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रोजा रहता है और रोजेदार की हाँ मुदीर, हाँ बाबा, या मुदीर, या मुदीर, ना माफी मौजूद
शैतान को या मुदीर या मुदीर कर देता है। और तीसरा क्या इनाम है रोजेदार के लिए तवज्जो चाहूंगा। हमारे आका फरमाते हैं कि तीसरा इनाम यह है हाँ मुदीर शुक्रान। और चौथा इनाम क्या है? क्या अल्लाह ताला उस रोजेदार के सामने जो इफ्तारी मौजूद है, सामने मेवा जात मौजूद है, सेब है, केला है और संतरे हैं, जूस है, दूध है, जब इनको सामने रखता है। रोज तो अपनी मर्जी से खाता था, सुबह 7 बजे उठा खा लिया, 8 बजे उठा खा लिया, 12 बजे उठा खा लिया, 4 बजे चाहा खा लिया, शाम को खाया, दोपहर में खाया, जब जी चाहा तब खाया। लेकिन आज बंदा सारे मेवा जात सामने रखा करके और रखा से यह साबित कर रहा है एक परवरदिगार आलम, रोज तो मैं तेरी मर्जी से नहीं खाता था, जब जी में आता टाइम टेबल नहीं था खा लेता, मैंने टाइम रख दिया है। अब जब तक ये इजाजत होगी नहीं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी नहीं, अफ्तार का वक्त होगा नहीं, तब तक रंग नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे। पता चला बंदे का कोई इम्तिहान है जो रब और बंदे के दरमियान ये इम्तिहान है। या तो रब जानता है या तो उसकी इबादत को बंदा जानता है। इन दोनों के दरमियान चाहे तो से दरवाजा बंद कर दो, भूखे से एक पानी एक गिलास मार दे, कोई ये थोड़ी रहा है। लेकिन नहीं, जब अकेला रूम में होगा और एक गिलास पानी हाथ में लेगा तो सोचेगा नहीं यार परवरदिगार आलम दिल में जज्बा जागता है और वो कहता है अल्लाह भेज रहा है। ये फैसला किया आप सबको बाबा कि 5वां चीज अल्लाह ताला चौथी चीज ये आता फरमाता है सामने इफ्तार मौजूद है और लास्ट में जब हाथ को उठाता है परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगार आलम हमने रोजा रखा है तेरे लिए, मेवा मौजूद है लेकिन खाना नहीं है, मेवा मौजूद है खाना मौजूद है लेकिन खाना नहीं है। तो अल्लाह को इस रोजेदार की अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ जो निकलती है बाबे इजाजत से टकरा जाती है और फौरन ये दुआ कबूल हो जाया करती है। वक्त कब है इसलिए समाज करते चलो जल्दी जल्दी हमने पूरे भारत में किया है और जगत में किया है और अपनी धरती पर जमीन पर पहली बार हमारा खिताब हो रहा है। तवज्जो हो 5वां इनाम सबसे बड़ा सबसे होली फैट का इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। रोजेदार के लिए मैं कौन सा वो इनाम ये है अल्लाह ताला इसको अपना इनाम नसीब फरमाएगा मरने के बाद जब जन्नत में जाएगा। हम आप लोगों से कहेंगे रोजा अच्छी तरीके से रहो। आओ इस्लाम भी रोजा रखते थे। कलाम ने देखा कि प्यारे आका लगातार 3 दिन तक भूखे रहते हैं, 3 दिन नहीं खाते हैं। तो साहबे कलाम प्यारे आका के इश्क में वो भी खाना छोड़ दिया। एक दिन साहबा ने खाया, कुछ लोग नमाज़ी कम हो गए, कोई साहबे कलाम नहीं खाए खाना और नमाज़ी कम हो गए, तीसरे दिन को लड़खड़ाने लगे। अपने भक्तों को, अपने प्यारों को, अपने जानिसारों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने आशिकों को बुलाया और बुलाने के बाद नमाज़ी कम होते क्यों जा रहे हैं? बात क्या है? एक साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रोजा रह रहे हैं, 3 दिन हो गए आप कुछ खाए नहीं है। हम कुछ लोग गिर गए हैं। तुम में से कौन है मुख्तारा? जब ईमान वाले से साहबे किराम से प्यारे आका खिताब कर रहे हैं तो फरमाते आयकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मेरी तरह? यानी मैं अगर नहीं खाता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, लेकिन हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया आखिरी बात में यहाँ से
کہہ کے عرض کر کے گزرنا چاہوں گا کہ چاہے 5 منٹ کا خطاب ہو، چاہے 10 منٹ کی تقریر ہو، تو کم سے کم اس میں اگر کوئی اچھی باتیں رہیں اسے آپ توجہ سے سنیں، اس پہ غور کریں۔ علم بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اور دل میں عشق نبی ہے تو عبادت قبول ہے، ورنہ ہر سار سجدے کرنے سب فضول ہے۔ آخر دعوانا Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, see my friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.